Welcome. Yeah, thank you, brother. I thank God and praise God for this blessed time that God has given to all of us. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और स्तुति देता हूँ इस आशीषित समय के लिए जो उसने हम सबको दिया है। Few things I would like to share with all of you. कुछ बातें मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ What God has done in my life, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में की है। I would like to share. Where God has helped me, I would like to share with all of you. Especially, I think जिन क्षेत्रों में परमेश्वर ने मेरी सहायता की है मैं उसको आपके साथ बांटना चाहता हूँ। all of us, who have gathered here. Most of us are young people, and all of us we have a desire that we follow Jesus Christ. और मेरा ये विश्वास है कि हम जो आज इकट्ठा हुए हैं हम में से ज़्यादातर लोग जवान हैं और हम सब में ये इच्छा है कि हम यीशु मसीह के शिष्य या अनुयायी बने। There is a sincere desire, and that's why we have all gathered here. हमारे अंदर ये ईमानदार इच्छा है और इसी वजह से आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। There is a sincere desire in us that we want to follow Jesus. हमारे अंदर ये ईमानदार इच्छा है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। So we read from the Word of God about overcoming life. और हम परमेश्वर के वचन से विजयी जीवन के विषय में पढ़ते हैं। We all hear about this, that हम सब इसके विषय में सुनते भी हैं we can all be overcomers. But कि हम सब पाप पर विजय पाने वाले हो सकते हैं। many a times what happens is we hear about the overcoming life, and when we fail, sometimes when we fail, पर कई बार क्या होता है जब हम पाप पर विजय पाने के जीवन के विषय में सुनते हैं और जब हम असफल हो जाते हैं at that time there is a great tendency of discouragement is setting in our heart. और उस समय ये प्रलोभन आता है कि हम निराश हो जाए और हमारे हृदय में निराशा आ जाती है। And there is a constant voice from Satan also speaking to us that और शैतान से भी एक वाणी हम बार बार सुनते हैं जो हमसे कहती है, hey, see, you failed yesterday and you confessed your sins. Today morning also you failed. और देखो कल ही तो तुम असफल हुए थे, कल तुम असफल हुए, आज फिर से तुम अपने पाप के अंगीकार कर रहे हो, पापों को कबूल कर रहे हो और आज सुबह भी तुम असफल हुए। Right now also you failed. इस समय भी तुम असफल हुए। I don't think you will be able to make this life. मैं नहीं समझता कि तुम इस विजयी जीवन में प्रवेश कर सकते हो। And this constant voice, it can really let us down, और ये जो वाणी जो निरंतर हम सुनते हैं ये सचमुच हमारे जीवन में निराशा ला सकती है and it can bring us into discouragement. और वो हमारे जीवन में निराशा ला सकती है। I have gone through that, but really God has helped me so much to understand that we are not alone in this particular battle. और मैंने खुद इस परिस्थिति का सामना किया है, मैं इससे गुजर चुका हूँ और परमेश्वर ने मेरी सहायता की है ये समझने के लिए कि इस लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं। That gives us so much comfort. और इस बात से हमें बहुत ज़्यादा सांत्वना प्राप्त होता है। It gives us so much of comfort. It gives us so much of strength and confidence in our life. और ये हमें बहुत ज़्यादा सांत्वना देता है, हमारे जीवन में ये हियाव और सामर्थ को देता है That the Lord is there with us in the struggle. कि इस संघर्ष में प्रभु हमारे साथ है। We are not alone. हम अकेले नहीं हैं। God is there with us. परमेश्वर हमारे साथ है। He loves us. वो हमसे प्रेम करता है। He loves us, and that is where actually we need to have our faith. So और वो हमसे प्रेम करता है और वही हमारा विश्वास टिका होना चाहिए। when we turn to Hebrews chapter 10 verse 38, और जब हम इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 38 वचन को हम देखेंगे। Hebrews chapter 10 verse 38. Can someone read Hebrews chapter 10 verse 38? Hebrews chapter 10 verse 38. Anyone can read. But my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. इब्रानियों 10:38 पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। Yeah, this is the word of God. Thank you, brother. This is the word of God. What God says that my righteous one, he will live by faith. और ये परमेश्वर का वचन है जहां परमेश्वर कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। He will not live by sight. वो अपनी दृष्टि से वो क्या देख सकता है इसके द्वारा वो जीवित न रहेगा। Many a times, we are all, very much tempted to go as per our sight. Whatever we see, that is very real. For example,
और कई बार हमारे अंदर ये प्रलोभन होता है कि हम जो देख पाते हैं उसी के हिसाब से हम चले। उदाहरण स्वरूप When we see our failures, the failure, I failed today morning, that becomes so real. It becomes so real. और जब हम अपनी असफलता को देखते हैं कि मैं आज सुबह ही असफल हुआ, तो हमारी असफलता हमारे आंखों के सामने बहुत ज्यादा वास्तविक लगने लगती है। For us. But God says actually that my righteous one is not going to live by sight, but he is going to live by faith. पर परमेश्वर कहता है मेरा धर्मी जन अपनी दृष्टि के हिसाब से नहीं, वो अपने विश्वास से जीवित रहेगा। So it is a great challenge from God that my righteous one, he will live by faith. और ये परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी चुनौती है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, Not by sight. अपनी दृष्टि से नहीं। And I take no pleasure in the one who shrinks back. और यदि कोई पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। I take no pleasure in the one who shrinks back, who starts thinking that no, this is not possible. और मैं ऐसे व्यक्ति में प्रसन्न नहीं होता जो पीछे हट जाता है, जो ये सोचता है कि नहीं, ये तो असंभव है। This is not possible. This is one particular sin that I am falling over and over again, over and over again. I am struggling with this. और ये एक पाप है जिसमें मैं बार बार गिर जाता हूँ, बार बार गिर जाता हूँ। इस क्षेत्र में मैं संघर्ष कर रहा हूँ For a long period of time. I don't think it is possible. और कई समय से मैं इससे जूझ रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि यह संभव है। I don't think I will be able to leave this. That is actually shrinking back, where we go back and we lose our faith and we say that no, this is not possible. और मैं नहीं समझता कि मैं विजयी हो सकता हूँ, और इसी का मतलब है कि हम पीछे हट जाते हैं जब हम अपने पाप को देखकर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। But the word of God says that I take no pleasure in the one who shrinks back. So पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होता जो पीछे हट जाता है। one thing that really helped me, as I previously also mentioned, that is God is there on our side. That gives us so much of confidence. पर एक बात जिसने मेरी बहुत ज्यादा सहायता की, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि परमेश्वर हमारी ओर है, और ये हमें बहुत ज्यादा हियाव से भर देता है। Because many years I wasted away thinking that God is a very very angry God and strict God. क्योंकि कई साल मेरे जीवन के मैंने ऐसे ही व्यर्थ गवा दिए, ये सोचकर कि जो परमेश्वर है वो बहुत ही गुस्सा परमेश्वर है और वो हर बार मुझ पर क्रोधित होता है, बहुत कठोर वो है। And he is there to discipline, and he is there to so much angry, and immediately when we do some mistake, he is very angry and he will punish me. And और वो मुझे अनुशासित करने के लिए है, वो मुझे दंड देने के लिए तैयार है, और मैं जैसे ही कोई गलती करता हूँ तुरंत वो मुझ पर क्रोधित होने के लिए तैयार खड़ा है। I was always ruled by this kind of wrong kind of fear in my life. और इस गलत भय से मैं बहुत ज्यादा पराजित था। But later on, by God's mercy, I understood actually that God is a great loving God. पर बाद में परमेश्वर की दया से मैंने इस बात को समझा कि परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रेमी परमेश्वर है। God is a great loving God. He is a merciful God. परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो दयावान परमेश्वर है। He is a merciful God, and we can run into His presence. We वो हम पर दया करने वाला परमेश्वर है और हम उसकी उपस्थिति में भाग कर जा सकते हैं। can run into. So this knowledge about our God, that is very important in our Christian life. और हमारे मसीही जीवन में परमेश्वर के विषय में ये सोच रखना, सही समझ रखना बहुत जरूरी है। And we can turn now to Hebrews chapter 4 verse 15. और हम इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 15 वचन को पढ़ेंगे। Hebrews chapter 4 verse 15. इब्रानियों 4:15। Can someone please read? Hebrews chapter 4 verse 15. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। Yeah. Thank you, brother. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin.
क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ सहानुभूति ना रख सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी वो निष्पाप निकला। See, what a great comfort it is. What a great comfort it is. How much confidence it gives us that, God, our high priest, Lord Jesus Christ, he can empathize with our weaknesses. और देखिए ये कितनी बड़ी सांत्वना की बात है कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, जो हमारा महायाजक है यीशु मसीह, वो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ सहानुभूति रख सकता है। He can empathize us. He can empathize with our weaknesses. He can sympathize. In another version, it is mentioned sympathize. He can understand the struggles that we go through. और वो हमारी निर्बलताओं में सहानुभूति रख सकता है, वो उन संघर्षों को समझ सकता है जिन संघर्षों से हम गुजर रहे हैं। I will just tell, one example from my workplace. और मैं जहाँ काम करता हूँ उस जगह से मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। The place where I work now, I have a very good manager who is my mentor all these years. और मेरे एक बहुत अच्छे मैनेजर है जिन्होंने इतने सालों से मुझे सिखाया है। So in my initial days, when I joined, I didn't know my manager very well. और जब शुरुआती दिनों में नौकरी जब मैंने ज्वाइन की थी, तब मैं अपने मैनेजर को अच्छे से नहीं जानता था। And I was always scared when I make some mistake. और जब कभी मैं गलती करता था तो मैं बहुत ज्यादा डर जाता था। And in my initial days, I used to make many mistakes at the workplace. And और मेरे शुरुआती दिनों में मैं जहाँ काम करता था, मैं कई गलतियों को करता था। the moment I make some mistake at that time, I'm so much scared that I try to cover up these mistakes. और जैसे ही मैं कोई गलती करता था, मैं इतना डर जाता था कि मैं अपनी गलती छुपाने की कोशिश करता था। I always think that if I tell this openly to my manager, he will really scold me and he will lose his confidence on me. और मैं हमेशा सोचता था कि अगर मैं खुद जाकर अपने मैनेजर को बताऊं मैंने क्या गलती की है, तो वो मुझे सबके सामने डांटेगा और वो जो मुझ पर भरोसा करता है वो उस भरोसे को खो देगा। He will be angry on me, my performance, future performance also, he will doubt about me. वो मुझ पर क्रोधित होगा और भविष्य में मैं काम कर सकता हूं क्या नहीं, इस बात पर वो हमेशा शक करेगा। And so many things ruled out. And so, every time when in my initial days, when I made this kind of mistakes, it was very difficult for me. And I used to be, I very fearful. There is no confidence and how I will approach him. So what? और इसलिए मेरे शुरुआती दिनों में मैं बहुत ज़्यादा भयभीत रहता था कि अगर मैं कोई गलती करूं तो अब क्या होगा, और मैं उसके सामने जाने से डरता था। मेरे अंदर कोई हियाव नहीं होता था। What I do is I try to cover up these mistakes. और इसलिए मैं क्या करता था, मैं अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करता था। I try to cover up these mistakes. But मैं अपनी गलती को छुपाते रहता था। later on, in one or two incidents, I came to know about my manager. पर आगे एक दो जो घटनाएं हुई उससे मैंने अपने मैनेजर को ज्यादा बेहतर जाना। That he's a very good man. He's a very good man. कि वो बहुत अच्छा मनुष्य है। When I go to him, when I approached him with one particular situation, he behaved, very differently. और जब एक बार मैं उसके सामने गया एक विशेष परिस्थिति में, तो मैं जैसा सोचता था उसने उससे बिल्कुल अलग बर्ताव किया। Behaved very differently. And he told actually, that's okay, Prince, that is okay. That is okay. और उसने मुझसे कहा, प्रिंस ये ठीक है, ये गलती तुमने की है, ये ठीक है। We make mistakes, but we have to learn from our mistakes. हम गलतियां तो करते हैं पर हमें अपने गलतियों से सीखना चाहिए। We have to learn from our mistakes and don't worry. So और तुम चिंता मत करो। Over a period of time, that gave me so much of confidence. I was really amazed actually the way that he behaved with me, that the next time when I make some mistakes, I honestly go and tell him like this is my mistake. और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा चकित हो गया कि उसने मुझसे कैसे बर्ताव किया, और इसलिए जैसे समय बीतता गया मैं ज़्यादा हियाव से उसके सामने जाने पाया, ताकि जब कभी मैं गलती करता था मैं उसके सामने जाकर कहता था कि ये मुझसे गलती हुई है। I made some mistake over here. मैंने यहाँ कोई गलती की है। I made some mistake here. So this gave me confidence to go to him, openly, not to cover up my mistakes. और इस बात ने मुझे इस हिम्मत को दी या इस हियाव को दिया कि मैं अपने आप से उसके सामने जाकर अपनी गलती को मान सकूं, ताकि मैं अपनी गलती को छुपाऊं ना। But to go and immediately acknowledge, and over a period of time, then there was a great desire that this man. पर उसके बजाय कि मैं अपनी गलती छुपाऊं, मैं जाकर अपने गलती को मान लूं, और कुछ समय बाद मेरे अंदर ये बहुत ज्यादा इच्छा होने लगी। For whom I am working here at the workplace,
he is such a good man. He trusts me so much. He has कि जिस मनुष्य के लिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ये मनुष्य मुझ पर इतना विश्वास करता so है, much of confidence in me. ये मुझ पर इतना भरोसा रखता है, So I need to work hard for him. और इसलिए मुझे उसके लिए ज्यादा कड़ी मेहनत करनी है, I really need to work hard for him. See, मुझे उसके लिए मेहनत करनी है। the attitude slowly changed. I don't want to make mistakes. देखिए, मेरा रवैया धीरे धीरे बदलने लग गया। मैं अभी गलतियां नहीं करना चाहता था। I want to, be very, hardworking. I want to be very careful in the way that I work. मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी। मैं जैसे काम करता हूँ, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी थी। And in between that, if I make again some mistakes, I can just confidently go there. That और उस काम करने के बीच में अगर मैं फिर एक बार कोई गलती करूँ, तो मैं बहुत हियाव के साथ उसके सामने जा सकता हूँ। gave me so much of confidence at the workplace, and it helped me actually to grow. और इस वजह से मेरे काम करने के जगह मैंने बहुत ज़्यादा हियाव और हिम्मत को पाया, और उस वजह से मेरी वहाँ उन्नति हुई। Similarly, in my Christian life also, this made a big difference. This made a big difference. बिल्कुल इसी तरह मेरे मसीह जीवन में भी इस बात ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाया, बहुत बड़ा फर्क लाया। When once upon a time I was ruled by fear. God is so much angry on me, and I cannot approach God. और एक समय मेरा जीवन बहुत ही भय के अधीनता में मैं जीता था कि मैं परमेश्वर के सामने नहीं जा पाता था। So today morning itself I confessed. How can I go to him now? आज सुबह ही तो मैंने ये पाप कबूल किया, अब फिर एक बार मैं कैसे उसके सामने जाऊं? So I will just wait. God is very angry. I should not go right now. और इसलिए मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ। परमेश्वर मुझसे बहुत ज्यादा क्रोधित है, मैं अभी उसके सामने नहीं जाना चाहता। I will go maybe after a few days. मैं शायद कुछ दिनों बाद उसके सामने जाऊंगा। Let his anger subside. उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा होने दो। Few more sins, and together I will go, and I will, this kind of thoughts always rule. But कुछ और पाप मुझे करने दो, ताकि 2-3 पाप एक साथ जाकर मैं उसके सामने मान लूं। और ऐसे विचार बार बार मेरे मन में आते थे। it really brought me so much of freedom in my life, so much of confidence, when I understood that Jesus Christ can understand the struggle that I'm going through. पर जब मैंने जाना कि यीशु मसीह उन संघर्षों को समझता है जिन संघर्षों में से होकर मैं गुजर रहा हूं, तो इसने मेरे जीवन में बहुत ज्यादा सांत्वना लाया, बहुत ज्यादा हियाव लाया। He can empathize. That is a wonderful thing. वो मुझसे सहानुभूति रख सकता है, ये एक अद्भुत बात है। That is a wonderful thing actually, where Jesus Christ can really understand my struggles. ये एक अद्भुत बात है कि यीशु मसीह वास्तविकता में मेरे सारे संघर्षों को समझ सकता है। When I go through some struggles, he can really understand. जब मैं किसी संघर्ष से होकर गुजर रहा हूं, तो वो सचमुच उसको समझ सकता है। He tells that Prince, I understand what you are going through. और वो मुझसे कह सकता है कि प्रिंस, मैं समझ सकता हूं तुम किस संघर्ष से जा रहे हो, But don't worry, you will overcome. पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम विजय पाओगे। Come to me. मेरे पास आओ, Come to me. मेरे पास आओ, Together I will help you. मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, हम एक साथ मिलकर करेंगे, You can overcome. तुम विजय पा सकते हो। And why he can empathize? Because he was also tempted exactly like us. He did और क्यों वो हमसे सहानुभूति रख सकता है? क्योंकि वो बिल्कुल हमारे ही तरह परखा गया। not sin. उसने पाप तो नहीं किया, We read that very clearly. हम उसको बड़े स्पष्टता से पढ़ते हैं। He did not sin, वो निष्पाप रहा, उसने पाप नहीं किया, but he was tempted exactly like us, and because of that he knows that what we are going through. पर वो हमारे ही तरह परखा गया, और इसलिए वो जानता है कि हम किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। See, in Hebrews chapter 2 verse 18, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 18 वचन, it is mentioned that because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. यहाँ लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। He himself was tempted. He वो खुद उस परीक्षा का सामना कर चुका है, was tempted. He उसने उस प्रलोभन का सामना किया, has gone through all this. So वो इन सारी चीजों से होकर गुजरा है। all the brothers and sisters, whatever may be the struggle that you are going through, और इसलिए सारे भाई और बहनों, जिस किसी संघर्ष से आप गुजर रहे हो, one thing you should have a deeper faith that God is with us. एक बात के विषय में आपको बहुत गहरा विश्वास होने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे साथ है In all the struggles, इन सारे संघर्षों में, and at the same time
God understands the struggle that we are going through. और उसी समय परमेश्वर उन संघर्षों को समझता है जिन संघर्षों का हम सामना कर रहे हैं। He is not there, standing with a stick always and to tell us like, again you did that. और वो वहां कोई लकड़ी लेकर नहीं खड़ा है ताकि वो हम पर चिल्लाकर डांटे कि तुमने वापस से यही किया, तुमने वापस से यही किया, Again you did that. Why did you do that? क्यों तुमने ये किया? See, why did you fall? Yesterday only I told not to do that, but again you fell into that. क्यों तुम पाप में गिर गए? मैंने कल ही तो तुम्हें बताया था कि ये नहीं करना, फिर भी तुम पाप में गिर गए। No, that is not our God. नहीं, ये हमारा परमेश्वर नहीं है। Our God is there who can empathize with our weaknesses. हमारा परमेश्वर है जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रखता है। Because the reason is because all of us, sincerely, if you see into our heart, we don't enjoy sin. इसका कारण क्या है? क्योंकि हम सब, अगर हम अपने हृदय को जांचे, तो हम कोई भी पाप में आनंद नहीं उठा पाते। That is the reality. We don't enjoy sin. We all ये वास्तविकता है कि हम पाप करना पसंद नहीं करते, हम उससे आनंद नहीं उठाते। have a sincere desire to follow Jesus. हमारे अंदर ये वास्तविक और ईमानदार इच्छा है कि हम यीशु मसीह के पीछे चले। And that's why actually, when we fall into sin, there is there is a great sorrow in our heart और इस वजह से जब हम पाप में गिर जाते हैं तो हमारे हृदय में ये बहुत बड़ा दुख होता है, because we are sincerely following in this way. क्योंकि हम ईमानदारी से इस मार्ग में चलने की कोशिश कर रहे हैं। And that's why God is there always with us. और इस वजह से परमेश्वर हर समय हमारे साथ है And he can empathize with our weaknesses. So that और वो हमारी निर्बलताओं से सहानुभूति रख सकता है। should give us so much of confidence. और इस बात से हमारे जीवन में बहुत ज्यादा हियाव आना चाहिए। And then I would like to share a few other verses. Matthew chapter 12, we read about our Lord Jesus Christ. Matthew chapter 12. और कुछ और वचन मैं बांटना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, जहाँ हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय। I will read these verses from the Living Bible. और मैं इसको लिविंग बाइबल, जो एक भावानुवाद है, उससे पढ़ता हूँ। Yeah, Matthew chapter 12, verse 19 to 21. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 19 से लेकर 21 वचन। Matthew chapter 12, verse 19 to 21. In the Living Bible, it is mentioned like this: He does not fight. It is written about Jesus Christ. He does not fight, nor shout. He does not raise his voice. और यीशु मसीह के बारे में लिविंग भावानुवाद में लिखा है कि वो झगड़ा नहीं करता, वो चिल्लाता नहीं, वो अपना आवाज जोर से नहीं उठाता। He does not crush the weak, वो जो निर्बल है उनको कुचलता नहीं, or quench the smallest hope. और जो बहुत छोटी सी आशा है उस आशा को वो बुझाता नहीं। He will end all conflict with his final victory, and उसके अंतिम विजय से वो सारे झगड़ों को खत्म करेगा, his name shall be the hope of all the world. See और उसका नाम ही इस सारे जगत के लिए आशा का कारण बनेगा। what a hope-giving verse it is. Words are there about Lord Jesus Christ. और हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या ही आशा देने वाले शब्दों को हम यहाँ पढ़ते हैं। He will not raise his voice. वो अपना आवाज ऊंचा नहीं उठाएगा। See, when we make some, mistake, when we go to Jesus Christ and honestly, when we go in His presence and when we acknowledge, जब हम कोई गलती करते हैं और जब हम अपनी गलती मानते हुए यीशु मसीह की उपस्थिति में जाते हैं, He will not raise His voice. He वो अपने आवाज को नहीं उठाएगा। will not say that, why did you do that? वो हमसे ये नहीं कहेगा कि तुमने क्यों ये किया, Why did you do that? क्यों तुमने ये किया। He will not, raise His voice. वो अपना आवाज इस प्रकार से नहीं उठाएगा। He does not crush the weak. वो निर्बलों को नहीं कुचलता। Those who are, weak, those who are struggling, जो निर्बल है, जो पाप से संघर्ष कर रहे हैं, God will stand by with them. परमेश्वर उनके साथ खड़ा होगा। That is our Lord Jesus Christ. ये हमारा यीशु मसीह है, That is our God. That is our Father in heaven. वो हमारा परमेश्वर है, ये हमारा स्वर्गीय पिता है। And He will always stand by with us. वो हर समय हमारे साथ खड़ा होगा। He will lift us up. वो हमें ऊपर उठाएगा। He will encourage us. वो हमें प्रोत्साहित करेगा। He will help us actually to move forward in our Christian life. वो हमारी सहायता करेगा ताकि हम अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ सके, उन्नति कर सके। So, and then it is mentioned that He does not quench the smallest hope. और उसके आगे लिविंग बाइबल में लिखा है कि वो सबसे छोटी सी आशा को भी नहीं बुझाएगा।
a smallest desire is there that, Lord, I want to live for you. आपके अंदर अगर एक छोटी सी भी आशा हो कि प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, Yes, I am falling, but I want to live for you. हाँ मैं हर दिन गिरता हूँ पर मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, Lord, I want to live for you, Lord Jesus. प्रभु यीशु मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ. You know that small desire, that small hope, He will not quench it. That वो जो छोटी सी इच्छा है, वो छोटी सी इच्छा जो आपके अंदर है उसको वो नहीं is बुझाएगा. what it is written. And यही यहाँ लिखा है. then in verse 21 it is mentioned that, and His name shall be the hope of all the world. So, और 21 वचन में लिखा है सारे संसार के लिए उसका नाम एक आशा का कारण बनेगा. brothers and sisters, we need not be discouraged in our life at any point of time, because the Lord is there with us. और इसलिए भाइयों और बहनों, हमारे जीवन के किसी भी समय हमें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है. He loves us so much. वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम रखता है. He can understand all the struggles that we are going through. वो सारे संघर्षों को समझ सकता है जिन संघर्षों से हम गुजर रहे हैं. Now we turn to Luke chapter 22. अब हम लूका रचित सुसमाचार इसके 22 अध्याय को देखेंगे. Luke chapter 22 verse 31 and 32. We see over there लूका 22 उसका 31 और 32 वचन यहाँ हम देखते हैं. an incident, where Jesus Christ is telling to Peter. और यहाँ हम एक घटना देखते हैं जहाँ यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं In verse 31 and 32 that, Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. See, और यीशु मसीह लूका 22 उसके 31-32 में कहते हैं, शमोन है शमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे. so there is there is a situation that is going to happen in Peter's life, और पतरस के जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आने वाली थी where he is going to deny Jesus जहां वो यीशु मसीह का इनकार करने वाला था. for 3 times. 3 बार वो इनकार करने वाला था. He is going to deny. Okay, but Jesus Christ is telling, he is giving him, before itself, he is going to fall. और यीशु मसीह पहले से ही उसे कह रहे हैं वो गिरने वाला है. He is going to fall. He is going to deny Jesus Christ 3 वो गिरने वाला है. वो 3 बार यीशु मसीह का इनकार करने वाला है. times. But what is the prayer that Lord Jesus Christ is having? That your faith may not fail. पर देखिए यीशु मसीह की क्या प्रार्थना है कि तेरा विश्वास न असफल हो या तेरा विश्वास न डगमगाए. Your faith may not fail. तेरा विश्वास जाता न रहे. It should encourage all of us so much और इस बात से हम सबको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होना चाहिए that when we also go through all these struggles, at that ताकि जब हम भी इन सारे संघर्षों से होकर गुजरते हैं, time, Jesus Christ is there and He is praying for us. और उस समय यीशु मसीह है और वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है That our faith will not fail. ताकि हमारा विश्वास जाता न रहे. Our faith will not fail. हमारा विश्वास जाता न रहे. And then there is an amazing thing after that. Actually, what is mentioned is, and when you have turned back, go and strengthen your brothers. और इसमें एक बहुत अद्भुत बात हम पाते हैं कि इसके आगे प्रभु कहते हैं, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना या उनको सामर्थ्य देना. See, a person who is going to fall, a person who is going to deny Jesus Christ 3 times, God has a wonderful plan from that particular person, and He's telling that once you come back from that, you go and encourage your brothers. देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो असफल होने वाला है, जो गिरने वाला है, ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर की कितनी अद्भुत योजनाएं हैं. और प्रभु कहते हैं जब तू फिरे तो अपने भाइयों को आकर तू स्थिर करना. So God has a wonderful plan. He's not looking in the temporary, right now. He's a God who is dwelling in eternity. और परमेश्वर के पास एक योजना है, वो हमारे फिलहाल की परिस्थितियों को केवल नहीं देखता, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अनंत काल से अनंत काल तक है. He has a great plan in each one of our life. हम में से हर एक के जीवन के लिए उसकी एक बहुत महान योजना है. Brothers and sisters, God is having a wonderful plan in each and every one of your lives. भाई और बहनों, आप में से हर एक के जीवन में परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है. So His desire is that, even when we fall, not to get discouraged, our faith will not lose. और परमेश्वर की ये चाहत है कि जब हम पाप में भी हम गिर भी जाते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और हमारा विश्वास नहीं जाना चाहिए. We will not lose our faith.
हम अपने विश्वास को नहीं खो बैठे, And then he also has a plan for us. और उसके आगे उसकी हमारे जीवन में एक योजना भी है। To Peter, he told actually, once you come out of that, you go and strengthen your brothers. और पतरस को प्रभु ने कहा, जब तू इससे वापस फिरे तो अपने भाइयों को जाकर स्थिर करना। So normally in this world we see actually, those people who fail, they don't value them actually. और आम तौर पर हम इस संसार में देखते हैं कि जो भी लोग असफल होते हैं तो लोग उनकी कीमत नहीं करते, उनको मूल्य नहीं देते। That is how they are all crushed under their feet. Those who don't do well, they और जो अच्छा नहीं करते ये सब दूसरों के पांव तले कुचले जाते हैं। are not considered only the smartest and the cleverest, and all they are being valued. और जो लोग असफल होते हैं उनकी कोई ज्यादा कीमत नहीं करता, पर जो लोग बुद्धिमान है, जो लोग ज्यादा उनके पास सामर्थ्य है, ऐसे लोगों को मूल्य दिया जाता है। But we see over here that even when Peter is going to fail, God is telling that once you come out of that, go and strengthen your brothers. पर हम यहाँ देखते हैं कि पतरस को प्रभु कहता है, जब तू गिरने भी वाला है, जब तू उससे वापस आएगा तो जाकर अपने भाइयों को स्थिर करना। A person who is going to fail, God is telling him that you go and strengthen your brothers. God एक व्यक्ति जो गिरने वाला है उसको प्रभु कहता है कि तू जाकर अपने भाइयों को स्थिर कर। is having a wonderful plan परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है in each one of our lives. So हम में से हर एक के जीवन के लिए। that is what we see here. Again, let us turn back to Hebrews chapter 4. और आइए हम फिर एक बार इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय देखें। Hebrews chapter 4. So what we should do, in verse 16 it is mentioned. और इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय 16 वचन, इसलिए हमें क्या करना चाहिए ये यहाँ लिखा है। Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। So, the summary of all these things is that, we should approach the throne of grace. We should go in the presence of God, not with having a great fear in our heart that what God will, how God is going to deal with me. और इन सारे बातों का सारांश क्या है कि हम जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाते हैं तो हमें ये भय लेकर नहीं जाना है कि परमेश्वर मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगा, Or, what God is going to tell me, He is not happy with me, not या परमेश्वर मुझसे क्या कहेगा, क्या परमेश्वर मुझसे अप्रसन्न है। with that kind of fear, ऐसा डर लेके हमें परमेश्वर के सामने नहीं जाना है, but how we have to go in God's presence is with confidence. पर हमें कैसे उसके परमेश्वर के उपस्थिति में जाना है, हियाव बांध कर। For two दो कारणों के वजह से things. We have to go in to God's throne with great confidence for two things. One और परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमें बड़ा हियाव बांध कर जाना है दो कारणों के लिए। is He can understand our struggles. एक तो क्योंकि वो हमारे संघर्ष को समझता है, He can understand our struggles. वो हमारे संघर्षों को समझता है। He will not raise His voice वो अपना आवाज नहीं उठाएगा, वो हम पर चिल्लाएगा नहीं, over us. He will not raise His voice that, why did you do that? वो हम पर ये नहीं चिल्लाएगा कि तुमने ये क्यों किया, He will not raise His voice. वो नहीं चिल्लाएगा। He can understand our struggles. And वो हमारे संघर्षों को समझता है। the second thing is that He overcame. और दूसरी बात, क्योंकि उसने विजय पाया, Even though he was tempted exactly like us, in every way he was tempted, he overcame. यद्यपि वो हमारे ही तरह परखा गया, हर एक परिस्थिति में वो परखा गया, उसके बावजूद उसने विजय पाया। Lord Jesus Christ, he overcame. He did not sin. प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाया, उसने पाप नहीं किया। So, two reasons that we can approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy. और ये दो कारण है क्यों हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने हियाव बांध कर जा सकते हैं, ताकि हम दया को प्राप्त करें। One thing is mercy. We go in the presence of God and we go and confess our sins and we tell to God, Lord, I am so sorry, Lord. I fell in this particular area. और हम दया के लिए जाते हैं परमेश्वर के सामने, हम ईमानदारी से मान लेते हैं कि प्रभु मैं पाप में गिर गया, इस क्षेत्र में मैं फिर एक बार गिर गया। Honestly, we go and confess. We don't try to cover up our sins. ईमानदारी से जाकर हम अपने पाप को मान लेते हैं, हम अपने पाप को छुपाने की कोशिश नहीं करते। We don't go and say that, Lord,
actually because of so and so situation it happened. No, we don't go and tell that, but हम प्रभु के सामने जाकर ये नहीं कहते कि प्रभु वास्तविकता में तो इस परिस्थिति की वजह से ऐसा हुआ, हम ऐसा नहीं we कहते। honestly go in the presence of God because he understands us. We tell him that, Lord, I fell in so and so area, Lord. It पर हम ईमानदारी से परमेश्वर के सामने जाकर कहते हैं क्योंकि वो हमें समझ सकता है कि प्रभु मैं ऐसे ऐसे क्षेत्र में गिर गया, is my mistake. Please ये मेरी गलती है, forgive me. आप मुझे क्षमा कीजिए, Please cleanse me by the मुझे शुद्ध कीजिए blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा, Forgive me. मुझे क्षमा कीजिए। And he is faithful, and he is faithful. He will forgive us our sins. और वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है, इसलिए हमारे पापों को वो क्षमा करेगा। And the second thing is to find grace to help us in our time of need. और दूसरी बात, ताकि हमारे आवश्यकता के समय के लिए हम अनुग्रह पाए। And the next time, how we need to approach him when we are tempted, at that time itself, we have to run in God's presence, and we have to, that time of need, when we are tempted, immediately we run in the presence of God and we say, Lord, please help me. I don't. और दूसरी बार हम परमेश्वर के सामने कैसे जाते हैं? जब हमारे आवश्यकता की समय है, जब हम परखे जाते हैं, तो हमें भागकर परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर से कहना है कि प्रभु मेरी सहायता कर, I don't want to fall this time. मुझे इस बार नहीं गिरना है, Please help me. आप मेरी सहायता कीजिए, I need your grace. मैं आपका अनुग्रह, मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत है। God's grace, the power of the Holy Spirit, God's grace is going to help us. परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारी सहायता करेगी। It is going to help us to be overcomers. So और वो हमें जय पाने में सहायता करेगी। it is an amazing life that God has kept for all of us, और ये एक अद्भुत जीवन है जो प्रभु ने हम सब के लिए रखा है, where we can live an overcoming life. But the most important thing is that we will have faith. The righteous, my righteous one, will live by faith. और ये एक अद्भुत बात है कि हम ऐसे जी सकते हैं, पर सबसे जरूरी बात यह है कि हम में विश्वास हो, क्योंकि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। And we should never be discouraged. और हमें कभी भी निराश नहीं होना है। We should never be discouraged, brothers and sisters. When Satan comes and tells that, I don't think you will be able to do this, at that time we should not listen to that voice. We should reject that kind of voice. और भाई और बहनों, हमें कभी भी निराश नहीं होना है। जब शैतान हमारे पास आकर कहता है कि मैं नहीं समझता तुम ये कर सकते हो, तो हमें उसकी बात नहीं माननी है, हमें उस बात को इनकार करना है। And we have to look unto Jesus. और हमें यीशु मसीह की ओर देखना है। My God, my Lord Jesus, he will help me to overcome. मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मेरी सहायता करेगा ताकि मैं जय पाऊं। I will be an overcomer. So मैं एक विजयी व्यक्ति बनूंगा। we have to listen to the voice of God. We run in the presence of God. और हमें परमेश्वर की आवाज सुननी है और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में दौड़ कर जाना है। With confidence, because he understands each and every struggle that we are going through. और हमें हियाव से वहां दौड़ कर जाना है, क्योंकि वो हर संघर्ष को समझता है जिस संघर्ष से होकर हम गुजर रहे हैं। He can very well relate with us. He can very well relate with us. He did वो हमारी परिस्थिति को भली भांति समझ सकता है। not sin, but उसने पाप नहीं किया। he can understand, because when he was tempted, he also suffered. Because of that, he can help us, those who are also going. और वो समझ सकता है, क्योंकि जब वो परखा गया तब उसने भी उस पीड़ा को सहा, इसलिए वो हमें समझ सकता है। In temptation. Now, I would like to go to the Old Testament and show all of you one famous incident which all of us we know. और मैं अब पुराने नियम से एक घटना को आपको दिखाना चाहता हूं, जिस घटना को हम सब जानते हैं। From 1 Samuel. पहला शमूएल 1 Samuel chapter 17. This is a very famous incident, and I think from children to elders, everyone knows about this, and that is about David and Goliath. और पहला शमूएल उसका 17 अध्याय, ये एक ऐसी घटना है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई जानता है। ये है दाऊद और गोलियत की कहानी। Okay, so few of the things I just want to show with all of you. What David had with, none of the people of Israel, all the mighty warriors in Israel didn't have. But और मैं आपको कुछ बातें दिखाना चाहता हूँ। दाऊद के पास क्या था जो इस्राएल के सारे शूरवीरों के पास नहीं था? David had something. दाऊद के पास कुछ था। Okay, something really amazing. Okay, that is what I would like to share with you in continuation to this. और इसी बात के आगे दाऊद के पास कुछ अद्भुत जो था, उस बात को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। And 1 Samuel chapter 17 verse 10. Can someone read? पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसका 10 वचन। Verse 10 and 11. 1 Samuel chapter 17 verse 10 and 11. पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 10 और 11।
Okay, I will read. Then the Philistine said, "This day I defy the armies of Israel. Give me a man and let us fight each other." On hearing the Philistines' words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. फिर वो पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इसराइलियों पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इसराइलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। See, Goliath is, he's a Philistine. He's a mighty warrior. और गोलियत जो है वो एक पलिश्ती है और वो एक बहुत बड़ा शूरवीर है। About his, all the his, physique. It is very clearly mentioned how tall he was, and he's a mighty warrior, and he's coming and challenging the people of Israel that. और वो एक बड़ा शूरवीर है, उसके विषय में हम पहले ही पढ़ते हैं कि वो बहुत ज्यादा ऊंचा था और वो आकर इसराइलियों को चुनौती देता है। This day I defy the armies of Israel. Give me a man and let us fight each other. And on hearing these words, Saul and all the Israelites were terrified. They were all terrified. They were all scared of this great giant. और यहाँ लिखा है कि मैं आज के दिन इसराइलियों पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। और लिखा है कि ये सब सुनकर शाऊल और समस्त इसराइलियों का मन कच्चा हो गया, वे अत्यंत डर गए। Who is coming there and challenging him? And in verse 16 we read, for 40 days the Philistine came forward every morning and evening, and he took his stand. See. और 16वें वचन में हम पढ़ते हैं, वो पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। For 40 days, morning and evening, Goliath used to come there and challenge the army of Israel. और 40 दिनों तक सोचिए, गोलियत आकर उस इस्राएली सेना को चुनौती देता था। And he will go back. और वो वापस जाता था। He will challenge, he will go back. वो चुनौती देता था, वो वापस जाता था। He will challenge, and every time when he comes, the people would terrify. They will be terrified. और हर बार जब वो सामने आता था तो लोग अत्यंत डर जाते थे। Okay, and a young man, David, is coming, for, to go and check his brothers. He is coming in the camp. और एक जवान लड़का जो दाऊद है, वो छावनी में आता है सिर्फ अपने भाइयों का हाल जानने के लिए। And he heard about this. And then in verse 32 he says, David said to Saul in the same chapter, verse 32, let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him. और दाऊद ने इस बात को सुना और दाऊद शाऊल से कहता है इसी अध्याय के 32 वचन में, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। And Saul's reply is, you are not able to go out against the Philistine and fight him. You are only a young man, and he has been a warrior from his youth. और शाऊल उसको उत्तर देता है, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन ही से योद्धा है। And something that has really blessed me is actually later on what David is telling, about his 2 experience that he had. और एक बात जिससे मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुआ, ये दाऊद जो अपने जीवन के 2 अनुभवों को बताता है, उससे मैं आशीषित हुआ। Okay, this has really blessed me so much. But David said to Saul, your servant has been, in verse 34 onwards, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. So 2 experiences he had. और 34 और 35 वचन में दाऊद कहता है, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। और ये 2 अनुभव है जो दाऊद के थे। One with the lion and the another with the bear. एक सिंह के साथ, एक भालू के साथ। और 36 वचन में दाऊद कहता है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वो खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। So when the lion came, he came and struck it down, and he would be amazed. David would be amazed, because God helped him. और जब सिंह आया तो सिंह को दाऊद ने मार गिराया, और दाऊद बड़ा चकित हो जाता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी सहायता की। God helped him.
to kill that lion. परमेश्वर ने उसकी सहायता की कि वो उस सिंह को मार सके। So when the next time when the bear came, he had that faith that the Lord who helped to struck down the lion will also help me to struck down this bear. और इसलिए अगले बार जब भालू उसके सामने आया तो उसके मन में ये विश्वास था, जिस परमेश्वर ने मुझे सिंह को मारने की सहायता की, वही परमेश्वर मुझे भालू को भी मारने में सहायता करेगा। He killed that bear also by God's strength. और उसने परमेश्वर के सामर्थ्य से उस भालू को भी मारा। And in verse 37 he is telling, the Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. और 37 वचन में दाऊद कहता है कि यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। See that great faith that David had on the Lord, on the strength of the Lord. और ये महान विश्वास और भरोसा जो दाऊद का था परमेश्वर पर और प्रभु के सामर्थ पर। He had an experience with the lion and the bear, and something that experience that he had, that all these battles that he had when he was very young, it was not because of his own strength, but the Lord helped me. और ये सारी लड़ाइयाँ जो दाऊद के जवानी में उसने लड़े, और उसका ये अनुभव था कि उसने खुद नहीं किया था बल्कि प्रभु ने उसकी सहायता की थी। Lord helped me, and none of them they had this kind of experience in Israel. It was only David who had this experience, and that's why he told actually that the God who helped me to struck down this lion and the bear is also going to help me to defeat this giant, this Goliath. और समस्त इस्राएल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसके पास ये अनुभव था अपने व्यक्तिगत जीवन में। वो सिर्फ दाऊद ही था जिसके पास ये अनुभव था कि परमेश्वर ने उसकी सहायता की थी उस सिंह और भालू को मारने के लिए, और इसलिए उसमें ये विश्वास था कि वो कहता है कि परमेश्वर मेरी आज भी सहायता करेगा इस पलिश्ती को मारने के लिए। And then in verse 45 he says that David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. और 45 वचन में दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। And verse 47, all those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and he will give all of you into our hands. और 47 वचन में दाऊद कहता है, यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। The battle is for the Lord. युद्ध जो है वो यहोवा का है। See what an amazing example in David's life that we see actually. और देखिए कितना अद्भुत अनुभव हम दाऊद के जीवन में देखते हैं। He is finding his strength in the Lord. वो अपने सामर्थ को प्रभु में पाता है। So this should really challenge us, in our life, each and every one of us, that whatever struggle we are all going through, whatever struggle, और इस बात से हमें सचमुच हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होना है कि किसी भी संघर्ष से हम होकर क्यों ना गुजर रहे हो। when we see this kind of giants like Goliath in our life, और जब हम गोलियत के समान हमारे जीवन में बड़े राक्षसों को देखते हैं, let it be anything actually, maybe it is some some whatever it may be, some anger, वो कोई भी बात क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी बात क्यों ना हो हमारे जीवन में, शायद वो कोई हमारे जीवन का गुस्सा या क्रोध है, or we are not able to forgive someone who has hurt us, या जिस व्यक्ति ने हमें दुख पहुंचाया है हम उसको क्षमा नहीं कर पा रहे, or lusting with the eyes, या आंखों से लालसा करना, or telling lies, or whatever it may be, या झूठ कहना, या कोई भी बात क्यों ना हो। these can all come as a giant and come and challenge us that this is not possible. और ये सारी बातें एक राक्षस बनकर हमारे सामने आकर हमें ललकार सकती है कि ये संभव नहीं है। Satan can tell this kind of voice he can put in our ears telling that no, it is not possible. और शैतान हमें ये कह सकता है, ऐसी आवाज हमारे कानों में वो कह सकता है कि नहीं, ये संभव नहीं है, cannot overcome, तुम इस पर विजय नहीं पा सकते, cannot overcome. तुम इस पर नहीं विजय पा सकते। But God wants all of us to have this faith in God. पर परमेश्वर चाहता है कि हम सब में ये भरोसा हो, प्रभु पर ये भरोसा हो। What David did was he saw the giant, but he saw that God is much more powerful than this giant.
और दाऊद ने क्या देखा? दाऊद ने भी उस राक्षस को देखा, पर उसी के साथ दाऊद ने देखा कि परमेश्वर इस राक्षस से कई ज्यादा सामर्थ रखने वाला प्रभु है। God is much more powerful than Goliath. परमेश्वर गोलियत से ज्यादा सामर्थवान है। He is an almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। And the amazing thing, it is, it is an insult for Goliath that, David didn't go actually with a sword and spear and all those things. और सबसे अद्भुत बात जो हम देखते हैं, ये तो गोलियत का एक बहुत बड़ा अपमान है कि दाऊद उसके सामने लड़ने के लिए कोई भाला या तलवार लेके नहीं गया। He went with just small stones to fight with this Goliath. वो इस गोलियत से लड़ने के लिए छोटे पत्थर लेकर गया, Because the Lord was there with David. क्योंकि दाऊद के साथ प्रभु था। In the same way, brothers and sisters, we need to have this faith on our Almighty God. वैसे ही भाई और बहनों, हमें भी अपने सर्वशक्तिमान प्रभु पर भरोसा और विश्वास होने की जरूरत है। Whatever it may be our struggle, हमारा संघर्ष कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, whatever it may be. Maybe it is some, other challenges, the earthly challenges, शायद वो कोई सांसारिक या इस पृथ्वी पर की चुनौतियां हो सकती है। maybe we are, looking for some job, or we are looking for some, admission, शायद हम किसी नौकरी की तलाश में हैं, या किसी कॉलेज में हम एडमिशन की तलाश में हैं, or, that kind of thing also, या ये भी बात क्यों ना हो। many a times actually, we can get discouraged. No, for a long period of time I'm doing that. It is not happening. No. और कई बार हम निराश हो सकते हैं कि कई समय से मैं इसको खोज रहा हूँ, फिर भी ये नहीं हो रहा। Our God has a good plan for us. हमारे परमेश्वर के पास हमारे लिए एक अच्छी योजना है। We need to have faith in our God. हमें हमारे प्रभु में भरोसा रखने की जरूरत है। That my God is able. He is there with me. मेरा प्रभु सक्षम है, वो मेरे साथ है। He is there with me. वो मेरे साथ है। And that is what the confidence, that is what the biggest confidence in David's life was. और यही एक बहुत बड़ा हियाव था दाऊद के जीवन में। That for the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. So, कि संग्राम जो है या युद्ध जो है वो प्रभु का है, और वो तुम्हें हमारे हाथों में कर देगा। now when we turn to Romans chapter 6 verse 14. अब जब हम रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय और 14 वचन को देखते हैं। Let us turn to Romans chapter 6 verse 14, and we know the end. और आइए हम रोमियो की पत्री 6 अध्याय और 14वां वचन निकालें, और हम पहले से ही अंत को जानते हैं। End of that, we know that David went and he defeated Goliath. Goliath was killed. That हम उस कहानी के अंत को जानते हैं कि दाऊद गया और उसने गोलियत को पराजित किया और गोलियत को मार दिया। is the end of it. वही वो कहानी का अंत है। So the Goliath was killed. और गोलियत मर गया। Now let us read this verse, Romans chapter 6 verse 14. अब आइए हम इस वचन को पढ़े, रोमियो 6:14। Can anyone read Romans chapter 6 verse 14? For sin shall not be master over you, for you are not under law but under grace. तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। Yes. So, can we all have faith in this particular verse? क्या हम सब लोग इस वचन पर विश्वास रख सकते हैं? That sin shall no longer be your master. कि पाप हम पर प्रभुता न करेगा, वो हमारा स्वामी नहीं होगा। Because you are not under law but under grace. क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। Can we all have faith in that? क्या हम सब इस बात पे विश्वास रख सकते हैं? We all need to have faith in this particular verse. It is written there. See, many times when we read this verse in my previous days. और इस वचन पर हमें विश्वास रखने की जरूरत है, क्योंकि ये यहाँ लिखा है। कई बार मेरे शुरुआती दिनों में जब मैं इस वचन को पढ़ता था, when my eyes were not open to that, जब इन बातों के प्रति मेरी आंखें नहीं खुली थी, I read this verse and I'm like, already the voice is there inside speaking, no, it is not possible. और मैं इस वचन को पढ़ता तो था, पर पहले ही मेरे कानों में, मेरे अंदर मानो एक आवाज थी जो कहती थी, नहीं नहीं, ये संभव ही नहीं है। No, it is not possible. नहीं, ये संभव नहीं है। How is this possible? ये कैसे हो सकता है? That kind of doubt can come. और ऐसा एक संदेह हमारे जीवन में आ And then सकता in है। 1 John chapter 2 verse 6. और उसके बाद हम पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 6 वचन में It is देखते हैं, mentioned, whoever claims to live in him must live as Jesus did. जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि वो वैसा ही चले जैसा वो चलता था। See, these are all verses when we read immediately, actually, we can, hear a voice that, no, this is not possible. ये सारे वो वचन हैं जिसको हम जैसे ही पढ़ते हैं, हमारे अंदर मानो ये आवाज आती है कि नहीं, ये संभव ही नहीं है, This is not possible. ये नहीं संभव है। But what God wants
each one of us to have is a complete faith in these verses. पर परमेश्वर क्या चाहता है कि हम सब इन वचनों में पूरा भरोसा रखें। That Lord, if it is written here that sin shall no longer be master, he will not be my master. If it is written there, I want to 100% believe. I want to 100% have faith on these words because these are your words. प्रभु, अगर यहाँ लिखा है कि पाप तुम पर प्रभुता न करेगा, पाप मेरा स्वामी न बनेगा, तो मैं इसमें भरोसा रखना चाहता हूँ। मैं 100% इसमें भरोसा रखना चाहता हूँ क्योंकि ये आपके वचन है। These are your words. ये आपके वचन है। These are the words of the Almighty God who have told this that sin shall no longer be your master. और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन है कि पाप तुम पर प्रभुता न करने पाएगा। I want to just have 100% faith in that. मैं 100% उस पर भरोसा रखना चाहता हूँ, विश्वास रखना चाहता हूँ। I don't want to look my present scenario and decide that I am failing there. मैं अपनी आज की परिस्थिति या वास्तविकता को देखना नहीं चाहता कि मैं आज इस क्षेत्र में असफल होता हूँ। How is it possible? Today morning I failed. आज सुबह ही तो मैं इसमें गिर गया, ये कैसे संभव है? Or few minutes back, I spoke some rude words to someone. I'm struggling with this for a long period of time. या कुछ क्षण पहले ही मैंने किसी से गुस्से से बात की और कई समय से मैं इस बात से जूझ रहा हूँ। We are not going to live by sight, but we are going to believe on this verse. हम अपने दृष्टि से नहीं जिएंगे बल्कि हम इस वचन पर विश्वास रखेंगे। 100% faith we are going to have, for sin shall no longer be your master. Lord, हम 100% विश्वास रखेंगे कि पाप तुम पर प्रभुता न करने पाएगा। if it is written there, 100% I want to have this faith. और प्रभु, अगर ये यहाँ लिखा है तो मैं 100% इस बात पर विश्वास करना चाहता हूँ। It is going to take time, but I'm not going to give up. I'm not going to shrink back. इसको शायद समय लगेगा पर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटना चाहता। And I want to think that it is not possible or get discouraged and backslide. और मुझे ये नहीं सोचना कि ये असंभव है और इसलिए मुझे निराश नहीं होना, मुझे पीछे नहीं फिसलना है। But I'm going to move forward. बल्कि मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। going to move forward. Like David, I want to have that faith and I want to move forward. मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। दाऊद के समान मुझे विश्वास मैं चाहता हूँ और मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। The Lord who helped me to kill the lion and the bear is also going to help me to kill this giant. प्रभु जिसने मुझे सिंह और भालू को मारने में सहायता की, वही मुझे इस राक्षस को भी मारने में सहायता करेगा। Like that actually we can move in our Christian life. और ऐसे ही हम भी अपने मसीह जीवन में बढ़ सकते हैं। Step by step we move forward. एक कदम करके, एक छोटा कदम लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। Step by step we kill the giants, we move forward. हम उन राक्षसों को मारकर हम आगे बढ़ते हैं। In my life also, when I was young, some of the struggles that I was going through, and I thought that this is not possible. और मेरे जीवन में भी जब मैं जवान था और कुछ संघर्षों से जब मैं गुजरता था तो मैं भी सोचता था कि नहीं, ये तो असंभव है। This particular sin, I cannot overcome. और ये जो पाप है, ये विशेष जो पाप है, इस पर मैं विजय नहीं पा सकता। This is everyone's weakness. ये तो हर किसी व्यक्ति की निर्बलता है। And I don't think actually I will be able to overcome that, but by और मैं नहीं समझता कि मैं कभी इस पर विजय पा सकूंगा। God's grace, God gave me that faith that I can overcome. And पर परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने विश्वास किया कि मैं उस पर विजय पा सकता हूँ। God helped actually, and that really helped me to take the next step. और प्रभु ने मेरी सहायता की और इस वजह से इसने मेरी सहायता की कि मैं अगला कदम उठाऊं और उसके आगे मैं अगला कदम उठाऊं। Next step. And it was only God who was there actually. और वो सिर्फ परमेश्वर था जो मेरे साथ था। To help. God is our strength. परमेश्वर ने मेरी सहायता की, परमेश्वर हमारी सामर्थ है। God is our strength and He is always there. So we can have the faith in this, for sin shall no longer be your master. Now, और परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी सामर्थ है और इसलिए हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि पाप हम पर प्रभुता न कर पाएगा। Let us come to Hebrews. Again, Hebrews chapter 10, verse 39. और फिर एक बार हम इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 39 वचन को देखेंगे। Hebrews chapter 10, verse 39. इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय उसका 39 वचन। But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but we belong to those who have faith and are saved. पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। Yes, we all belong to that, brothers and sisters.
We do not belong to those who shrink back and are destroyed. We can all confess this in our heart. और हाँ, हम में से हर कोई इस झुंड में है, हम उनमें से नहीं जो हटने वाले हैं, जिनका नाश होता है। No, I do not belong to the one who shrink back and get destroyed. और हम इस बात को कबूल कर सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं कि मैं उनमें से नहीं जो हटने वाले हैं ताकि उनका नाश हो जाए। The moment, when we shrink back, when we go back in discouragement, what happens is, we are slowly getting destroyed. But और जैसे ही हम पीछे हट जाते हैं, हम निराश होने लगते हैं और हम पीछे जाते हैं तो क्या होता है, हम नाश होने लगते हैं, हमारा नाश होना शुरू हो जाता है। God doesn't want us. That is what it is mentioned there. I take no pleasure in the one who shrinks back. और प्रभु यही तो नहीं चाहता, इसलिए लिखा है कि मैं उसमें प्रसन्न नहीं होता जो पीछे हट जाता है। If anyone gives up and says that, no, it is not possible, God is not pleased with that. अगर कोई हार मान लेता है और कहता है नहीं ये असंभव है, तो परमेश्वर उसमें प्रसन्न नहीं है। But even though we fail, we go in the presence of God with confidence and we say and we acknowledge our sin. और यद्यपि हम असफल होते हैं, हम पाप करते हैं, हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर अपने पाप को मान लेते हैं, उसको अंगीकार करते हैं। And we have that great faith that my God can understand my struggles and he will help me to overcome. और हमारे अंदर ये महान विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे संघर्षों को समझता है और वो मेरी सहायता करेगा कि मैं विजय पाऊं। So God wants us to move forward, but we do not belong to those who shrink back and are destroyed. और परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े और इसलिए हम हटने वाले नहीं कि हमारा नाश हो जाए, But to those who have faith and are saved. पर हम विश्वास करने वाले हैं जिनके प्राण बचाए जाते हैं, वो उद्धार पाते हैं। So faith is a very, very important thing, brothers and sisters, for all of us. और इसलिए भाई और बहनों, हम में से हर एक के लिए विश्वास एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। That we have faith that God is there with me. कि हमारे अंदर ये विश्वास है कि प्रभु मेरे साथ है। He loves me so much. वो मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। He will never give up on me. वो कभी भी मुझे छोड़ नहीं देगा। And he will help me to overcome. और वो मुझे विजय देने में मेरी सहायता करेगा। So we want, all of us, we want to belong among those who have faith and are saved. और हम में से हर कोई उस झुंड में होना चाहता है जो विश्वास करते हैं और जो उद्धार पाते हैं। We have faith, we are saved. हमारे अंदर विश्वास होता है, हम उद्धार पाते हैं। Daily we have faith and we are saved. दिन प्रतिदिन हम विश्वास करते हैं और हम उद्धार पाते हैं। And we move on in our Christian life. May और वैसे ही हम अपने मसीह जीवन में बढ़ते जाते हैं। God help all of us with His word and may God's name be glorified. और परमेश्वर हम सबों की सहायता करे उसके वचन के द्वारा और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले।